Hello students, hope you all are fine. Well, today I am starting with the third chapter of history textbook from 10th class. The chapter is the rise of global world. The rise of global world. Fine. So what is the chapter? Rise of global world. So far we have finished two chapters from the history textbook of class 10, and it is the third chapter that we are going to discuss here, the rise of global world. Before moving ahead, I would like to make it clear that what is the meaning of global world. It is important to understand the meaning of this global world, right? So here is, what is global? Global means related to entire world. In simple terms, I would say that global world, when things, when the people, when the ideas, when the capital and many more things, even I would say the germs and disease, keep moving from one place to another is called globalization, right? And especially today, in this present world, we are living in a kind of world where everything is dependent, every country is dependent over the other country, right? So, I'll draw a roughly map here to just make you further understand what is the globalization, right? Drawing a roughly map of the world. Okay, fine. As you know, here is North America, South America, here is this Europe, here is Africa, here is Asia and Australia, right? As you all know guys, that all the countries having approximately 40 to 50 country except this Australia. And in the very first chapter there we discussed the making of nationalism during the 17th and 18th century. So it is fine to make the a different nation state, but it is equally important to have their interrelation between, right? It is equally important to have their dependency over the other country. Presently we are living in a world कि कोई भी एक देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक देश दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहे. तो इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं आज किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पे निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, राइट? सो इसमें अगर हम देखते हैं, पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास प्री मॉडर्न वर्ल्ड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? प्री मॉडर्न वर्ल्ड. Since we talk about the globalization, if we are talking about the globalization, we oftenly refer to this period that is emerging from the last 50 years, or you can say from the last century, 100 years. But in actual sense, the globalization has a long history. In this chapter, you will come to understand the globalization has actually a long history of trade, migration, movement of people from one place to another, right? So here, from the ancient time, if you see, travelers, priests, and traders just keep on moving from one place to another, from one country to another, in the search of opportunity, in the search of job, in the search of business, and many more things. Now all the people, as you know, they were traveling from one place to another place. I'm talking not of the present time, present situation. मैं अभी प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, राइट? तो उस टाइम से ट्रैवलर्स, प्रीस्ट, ट्रेडर्स या कोई जो एडवेंचर्स करना चाहते हैं, जो दूसरी कंट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दूसरी किसी रीजन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है कंटिन्यूसली जाते रहते थे. Now the things they carry with themselves was like capital, ideas, right? Even germs, diseases, right?
एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। बहुत सारी चीजें वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड हमारे पास टॉपिक चल रहा है, इसमें किस तरह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह के लिए चीजें ले जाते थे। अब इसके साथ जर्म्स ऑफ नॉलेज वगैरह ये भी जो है एक जगह से दूसरी जगह, लाइक the people of particular country knowing about the any technique, any technology, any crop, any other any other thing, वो लोग जब दूसरी कंट्री जाते हैं डेफिनेटली दे विल बी just carrying that knowledge and that ideas from one place to another place, right? तो इस तरीके से as I already told you that global world किस तरह से राइज हुआ, इमर्ज हुआ, ठीक है। आज तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोग जो है एक साथ मिले हुए हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, द पेंडेमिक डिजीज, दिस कोरोना वायरस, दिस इज आल्सो pretty much example for this globalization, right? तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द सिल्क रूट। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक। अभी ये हमारे पास यू कैन से इंट्रोडक्शन पार्ट था। फाइन, सो हियर इज सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, लिंक्स द वर्ल्ड, राइट। अभी सिल्क रूट क्या है, व्हाट इज दिस सिल्क रूट एंड इट किस चीज के लिए ये इस्तेमाल होता था, ये कब हुआ करता था, इसकी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। सिल्क रूट बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ एंशिएंट नेटवर्क जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सिल्क रूट के लिए अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 114 BC टू हमारे पास चलेगा ये 1450 AD तक, इस टाइम तक जो है सिल्क रूट का इस्तेमाल किया गया है। नाउ सिल्क रूट इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर रूट व्हिच वाज ओवर स्कैटर्ड ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। The Silk Route was scattered over the different landforms like this mountains, deserts and even I would say oceans. तो इस सिल्क रूट का सहारा लेके लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रीजन के लोग जो है एक दूसरी कंट्री से कनेक्ट करते थे। मोस्टली दिस सिल्क रूट वाज कनेक्टेड बिटवीन दिस एशिया, दिस वेस्ट एशिया टू द दिस यूरोपियन कंट्रीज। अब इस सिल्क रूट का नाम इस सिल्क कैसे पड़ा, सिल्क रूट कैसे पड़ा? बेसिकली सिल्क रूट जो है स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो सिल्क जो है चाइना से ट्रेवल करता था दूसरी कंट्रीज के लिए, यूरोप के लिए। बहुत सारी स्टार्टिंग में जो है सिल्क जो है ट्रेवल करता था इस रूट से, बट ग्रेजुअली आस्ता आस्ता बहुत सारी चीजें इस सिल्क रूट के माध्यम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है जाने लगी, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है सिल्क रूट जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में हमें बताती है। दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल जहां हमें पता चलेगा कि किस तरह जो वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड हुआ करता था, किस तरह से कल्चरल लिंक्स हुआ करते थे, हाउ द पीपल ऑफ वन प्लेस यूज्ड टू कनेक्ट विद अदर कंट्रीज। तो अभी हमारे पास ये चाइना का जो सिल्क रूट जो नाम दिया गया था, इसमें कौन कौन सी चीजें ट्रेवल करती थी उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, राइट। जैसे कि अभी स्टार्ट मैं आपको बता दूं, सिल्क रूट लाइक चाइनीज पॉटरी एंड सिल्क ट्रेवल टू द अदर कंट्रीज फ्रॉम दिस रूट। तो क्या था, चाइनीज पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन चाइना से बने हुए। स्टार्टिंग में तो ये सिल्क रूट है, स्टार्टिंग में जो सिल्क बनता था चाइना में वो जाता था, लेकिन इसके बाद ये रूट जो है डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चाइनीज पोट्री एंड सिल्क ये जो है मतलब दूसरी कंट्रीज के लिए ट्रेवल हुआ। इसके बाद जो है बहुत सारी प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीजें जो है यूरोप से हमारे एशिया के लिए ट्रेवल हुई, राइट। फिर इसी रास्ते से रिलीजियस कुछ मिशनरीज लाइक क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन, इस्लामिक प्रीचर्स एंड अदर ट्रेवलर्स, अदर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, बात करने के लिए वो जो है इसी
सिल्क रूट का सहारा लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिल्क रूट। आपको ये याद रखना है कि सिल्क रूट जो है कैसे किस चीज से आया ये। दिस वाज बेसिकली जो चाइना से सिल्क जो है ट्रांसफर होता था एक जगह से दूसरी जगह के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। नाउ वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द खाने को है, राइट। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी आर कंज्यूमिंग nowadays, like we have this noodles, ये मोमोज वगैरह जो आपका चाइना से आया है। ये हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो दादा परदादा हैं, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं है ये क्या चीज है। सिमिलरली ये तो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो ये सब चीजें हम खा रहे हैं, इवन आई वुड से बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, बहुत सारी ऐसी जो फसलें हम उगाते हैं आज के टाइम में, ये भी पूरी वर्ल्ड में ऐसे ही स्कैटर्ड नहीं थी। ये तभी आई जब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह गए, वहां से ये आइडियाज कैरी किया, वहां से ये सीड्स कैरी किए, वहां से ये आई मीन खाने की जो भी चीजें हैं वो अपने साथ लेके जो है इधर उधर जब गए, तो तभी ये चीजें जो है दुनिया भर में आ गई। मैनी फूड आइटम्स रीच्ड आवर कंट्री थ्रू ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेट अस से नूडल्स की बात करें तो ये चाइना से आया है। अगर हम पास्ता की बात करें तो अरब कंट्रीज से आया है, ठीक है। ओरिजिन इसका जो है अरब कंट्रीज से पास्ता, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी कॉमन फूड, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, जैसे सोया हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया, मेज हो गया, टोमेटो, चिली, ये सब चीजें हमारे जो फोर फादर्स हैं या कुछ 5-6 सेंचुरी पहले अगर हम देखते हैं तो ये चीजें पूरी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। These food were only introduced in the Europe when the Christopher Columbus, आपको मालूम है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने 1492 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था अमेरिका को, राइट। पर जब अमेरिकन वर्ल्ड डिस्कवर हो गया तो डिस्कवर होने के बाद बहुत सारी चीजें जो अमेरिका में हुआ करती थी, दे केप्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम अमेरिका टू द अदर कंट्रीज, राइट। अब यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। When people started moving from one country to other country in the search of this food, इसी में एक चीज निकल जाती है, यानी कि एक फूड आइटम निकल जाती है, पोटैटो, ठीक है। अब ये पोटैटो जो है इसको हम्बल पोटैटो कहा गया है। ये तो आज भी सस्ता है, तब भी सस्ता हुआ करता था। तो ये एक ऐसी डिपेंडेबल क्रॉप बन जाती है। एक यहाँ पे एक स्टोरी में छोटी सी बता दूं आपको, आयरलैंड की बात करेंगे हम। तो वहां पे 1840s में लोगों के पास फिलहाल तो कुछ खाने के लिए था नहीं, बहुत सारी महंगाई या बहुत सारा ऐसा कुछ था उस टाइम में, तो खाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। ये पोटैटो जो है ये इमर्ज हो गया उस टाइम में एक हम्बल क्रॉप, जिससे जो गरीब लोग थे वो भी अपना पेट भर पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 1840s में क्या हो जाता है कि पोटैटो की फसल खराब होने से आयरलैंड में लाखों लोगों की जो है मौत हो जाती है। इसको आयरिश फेमाइन कहते हैं, अगर आप इसको याद रखेंगे आयरिश फेमाइन के नाम से, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मतलब कि चीजें ट्रैवल होती गई एक जगह से दूसरी जगह। ये एक पोटैटो वाली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये पहले तो आयरलैंड में था नहीं। जब यूरोपियंस जो है व्हेन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस अमेरिकन वर्ल्ड, वहां से ये आइडियाज लेके आए, राइट। और वहां से जब आइडिया ये लेके आए, जैसे ये पोटैटो जो है मतलब ये इसका सीड वगैरह जो भी होता है लेके आए, तो जब यहाँ पे आयरलैंड कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया, इसके पूरे अराउंड 80% इस पे डिपेंडेंट हो गए लोग, तो एक टाइम में 1840 में ये फसल खराब हो जाती है और पूरा जो है बहुत हजारों के हिसाब से लोग मर जाते हैं, आयरिश फेमाइन जिसको हम कहते हैं। फाइन, सो हियर विल द नेक्स्ट टॉपिक, कंफ्यूज्ड डिजीज एंड ट्रेड। क्या है टॉपिक? कंफ्यूज्ड डिजीज एंड ट्रेड। फाइन, कंफ्यूज्ड यानी कि किसी दूसरी कंट्री पे when a stronger country get a victory over the weaker country, simply you can say that is confused, right? Disease and trade, इसमें हम समझेंगे कि किस तरह जर्म्स को एज ए वेपन इस्तेमाल करके, बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करके दूसरी कंट्रीज को हराया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर हम ये बात करेंगे 15th सेंचुरी से है 17th सेंचुरी के दरमियान, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, यूरोपियंस जो थे वो डिफरेंट रास्ता जो है, दे स्टार्ट फाइंडिंग ओवर द रूट्स ओवर द लैंड ओवर द ओशंस एंड सम शॉर्टकट वेज टू रीच ओवर द अमेरिका। तो ऐसे ही उन्होंने डिस्कवर कर दिया, दे स्टार्ट डिस्कवरिंग एंड दे डिस्कवर दिस सी रूट टू द अमेरिका। अब अमेरिका पहुंच जाते हैं, इसमें याद रखने वाली बात है कि कौन कौन से कंट्रीज जैसे पुर्तगाल एंड स्पेनिश, ये लोग बहुत डोमिनेंट थे, ये बहुत जो है मतलब कि एंथुसियास्टिक तरीके से दूसरी कंट्रीज को डिस्कवर करते हैं और दूसरी कंट्री में जाके वहां पे जो भी रिसोर्स होता है उसको जो है हड़प कर लेते। तो पुर्तगीज और स्पेनिश जो है मतलब कि पूरी वर्ल्ड में जो है काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते रहते, राइट। तो दे हैड बिकॉज दे हैड अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड फायर आर्म्स एंड मेनी मोर थिंग्स जिससे दूसरी कंट्री को वो हरा सकते थे, राइट। Now the thing is that the people living in the अमेरिका की बात चलेगी ये, अमेरिका में क्या हो जाता है कि the people, अमेरिका is a distant land continent, and the people living over that landmass, they were unaware about the different diseases, जिसके लिए यूरोप में या एशिया के अंदर या बहुत सारी दूसरी कंटिनेंट्स में लोग जो है इम्यून सिस्टम पे काबू कर चुके थे। अमेरिका जो है एक डिस्टेंट लैंड होने के बावजूद the people they were not having that much immune system कि वो बीमारियों के साथ लड़ पाए। तो इसके लिए जब यूरोपियंस वहां पे जाते, वहां पे फतेह हासिल करते, उसके लिए वो इस्तेमाल करते जर्म्स का, लाइक स्मॉलपॉक्स, राइट। अभी ये स्मॉलपॉक्स वाली जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कब से लेके 15th-17th सेंचुरी यानी कि मिड 16th सेंचुरी, इस दौरान में ये काफी ज्यादा रही। तो इसमें क्या हुआ कि जब अमेरिका वर्ल्ड में, अमेरिकन कंटिनेंट में जो है यूरोपियंस घुस जाते हैं, दे कैरी द पीपल विद दिस स्मॉलपॉक्स, राइट। जब ये अमेरिका की लैंड पे एंटर हो जाते हैं तो ये स्प्रेड होने लगे वहां पे। अमेरिकन आप इनको जो है रिटेलिएट करते, इनको वापस करते, इनके साथ अगर इनके पास बंदूक हथियार या कुछ और चीज होती तो उसके साथ लड़ाई भी कर सकते थे। लेकिन जैसे आज हम कोरोना वायरस के चलते घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही अमेरिका की हालत हो जाती है यहाँ पे स्मॉलपॉक्स के लिए। आप देख रहे हैं तो स्मॉलपॉक्स में जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बीमार हो जाते हैं, लाखों के हिसाब से दुनिया वहां पे मरना शुरू हो जाती है। दिस वाज अगेन वेरी काइंड ऑफ पेंडेमिक डिजीज लाइक प्रेजेंट टाइम। तो इससे बहुत ज्यादा वहां पे नुकसान हो जाता है अमेरिका में, जिससे यूरोपियंस को एक मौका मिल जाता है कि वो वहां पे अच्छे से सेटल हो जाए और वहां पे चीजें, और एक वहां पे देयर वाज अ काइंड ऑफ दिस रूमर्स कि एल्ड्रेडो नाम का कोई शहर है जिसको डिस्कवर करने के लिए निकल पड़े यही स्पेनिश एंड दिस पुर्तगीज, राइट। एल्ड्रेडो में ये माना जाता था कि ये पूरा शहर ही सोने का बना हुआ है। तो ये इसलिए यहाँ पे लिए इस लालच में निकल पड़े कि यहाँ पे डेफिनेटली इनको जो है सोना मिलेगा, राइट। तो इसी के चलते ये अपने साथ ये इस चीज का इस्तेमाल करते, जो कि एक बहुत ही बड़ी वेपन थी। अगर आप देखें इसके अलावा अमेरिकन वर्ल्ड पे अमेरिका की दुनिया, अमेरिका का जो कंटिनेंट है वहां के लिए किस तरह से भीड़ वहां पे जमा हो जाती है। 19th सेंचुरी में अगर आप देखते हैं तो यूरोप के अंदर गरीबी और जो कॉमन चीजें हैं, दूसरी जो आई मीन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर डिजीजेस, जिसकी वजह से विच led to fled all the around 50% or you can say 30 to 40% population of Europe to the what we call America, right। बहुत सारे लोग जो है गरीबी के चलते they start moving from European countries to the America in the search of job, in the search of some trade and other तो इसके चलते अमेरिका जो है एक ऐसी जगह बन जाती है जहां पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो ये 18th सेंचुरी तक दुनिया भर की रिचेस्ट कंट्रीज हुआ करती थी। 18th सेंचुरी तक दुनिया भर की रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी। हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी, अब ये चाइना की बात करें तो इसने 15वीं सदी से लेके अपना जो एक आई मीन ट्रेड था बाहर की कंट्रीज से, वो थोड़ा कम कर दिया था, आइसोलेट हो गया था, आइसोलेशन में चले गया था चाइना, राइट।
लेकिन इंडिया जो है, सिंस इंडिया जो है ज्योग्राफिकली इसकी लोकेशन जो है जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे, तो ये इंडिया जो है मतलब कि ओशन रूट्स के जरिए जो है काफी ज्यादा पजलिंग, इंडियन ओशन जो है मतलब कि बहुत ज्यादा बिजी रहता था, जिसकी वजह से इंडियन पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा बिजी रहती थी। तो इसके बाद जो चाइना वगैरह जो है और इंडिया की इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाती है और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा शुरू हो जाती है आपका यूरोप की और आपका अमेरिका की। इनके बीच में काफी ज्यादा जो ट्रेड है, ट्रेड सेंटर अब यूरोप बन जाता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा ट्रेड हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल द ग्लोबल वर्ल्ड, राइट। आज के लिए फिलहाल हमारे पास इतना ही टॉपिक है, विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो, राइट। थैंक यू।